Assalamu alaikum students. We're back again with our lecture series and possibly it's our fourth lecture as far as economics is concerned. Today we have discussed GDP so far and the base of its current affairs. It's what does economy say? What does economic survey say about it? And what have been the projections and what have been the GDP of the last year? Well, discussed everything regarding GDP. Yeah. Subsequently, when we will touch more current affairs, what are the news that will come across regarding GDP? We'll be discussing that. It's not the case that we'll be leaving our current affairs only is this part. No, we'll be discussing time and again whenever the current issues revolve around our GDP. And today we'll study the topic that's GNP. Then we'll be seeing again national income and subsequently personal income and personal disposable income. And as promised, I told you last day that we'll be discussing about purchasing power parity as well. And that is today we'll be discussing about purchasing power parity as well. At least that will make you familiar with the subject, and you will be able to compare different aspects of economy on a macroeconomic level whenever you'll come across such terms in newspapers which you are I hope hopefully studying and reading every day, and which is very much part of this examination to build a culture of habit of preparing in the habit of preparation of UPSC or JKPSC. Your familiarity with newspapers stands very important. Okay, without wasting time, let's go back to our topic, and the topic is about National Income Accounting, Lecture 4. National Income Accounting. Lecture 4, and our topic is around, first we'll be discussing GNP, then other terms. GNP stands for Gross National Product. What does it stand for? I am very much hopeful that you might have come across this term at your home. At least you have done a survey or at least a reading of it. What do we mean by GNP? Can anybody amongst you tell me what do you mean by GNP? Because if there is some confusion, I can grab that confusion and I can take that confusion out from your mind. I'll possibly try to tell me, please, what is GNP? It includes the produce of companies that are in other countries, companies that are located in other countries as well. First thing, that is again a macroeconomic metric, macroeconomic variable or metric. But like GDP, macroeconomic variable or metric. See, I am using these terms. This will not help you in preliminary examination if you write this if you know this macroeconomic variable or metric. But this makes your answer look pretty in your mains. That's why I am using sophisticated terminology. Thus that you will become accustomed. You will become accustomed to these terms, and your answer writing will subsequently improve. Macroeconomic variable or metric like GDP. Please do not misunderstand me. I am not saying it is GDP. Rather, it's a macroeconomic variable or metric like GNP, that is like GDP, where we are particularly concerned what is present really within our national boundary. ठीक, gross national product. Before I come to its definition, इससे पहले मैं इसकी definition पे मैं आपको एक theoretically, एक diagrammatically आपके पास situation डालूंगा, और आप उसी situation को analyze करके आप खुद ब खुद इसकी definition पे पहुंचेंगे. Situation 1, situation 2. ठीक, both are
domestic economy means, when I say domestic economy, I'm saying I'm concerned about India. I'm concerned about India here. Possibly this will help you. And we'll compare it with foreigners. When I say foreigners, I will say it's institution or any worker or a foreign nation as well. ठीक? Foreign body. Foreigner doesn't mean a person. I'm saying it includes a state, it includes a firm, it includes everything. ठीक? Hyundai, आप सबको Hyundai गाड़ी पता है, ठीक? कहाँ की है Hyundai? साउथ कोरिया. साउथ कोरिया का की कंपनी है, मगर इसका प्रोडक्शन यूनिट कहाँ पे है? It is producing in India. It is producing in India, and it uses our manpower, land, etc. to earn its profit. And we have already included that thing as an income in our GDP. But what about, since the company belongs to South Korea, means जो इसका owner होगा वो भी South Korea का होगा, where will that profit flow to? Finally, South Korea. Money is taken back to South Korea. Ultimate profit is taken back to ठीक? Or suppose a worker is working in India, but he belongs to Saudi Arabia. Where do his or her remittances go? Saudi Arabia. Will it be taken into consideration while we calculate our GDP? No, because since remittances go, since profits go to South Korea, since remittances go to Saudi Arabia, why should we include it in our GDP? This is not the case. It would be calculated in the GDP of that following country where they ultimately go, where these profits, these remittances are finally taken to. And similarly, I'm an Indian, I work in Dubai like most of the people do. They earn a profit or remittances there and take it back to India. ठीक? Take it back to India. And similar, like we have an expertise in our service sector. We provide a service to lot of developed and developing countries like USA. Suppose I am a firm that belongs to India, but I provide service to US companies. Ultimately, US companies, they only avail a service, but the calculation of GDP for that company will be included in the GDP of India because it's a company that is based in India. That is actually Indian origin. ठीक? And it समझ आया? So basically what we are trying to do, we are trying to subtract that factor income that foreigners earn in our country from that factor income which our citizens earn in foreigners' country. समझ आया? If I go by this definition, I would say the GNP is nothing but a GDP. It is GDP plus net factor income. Net factor income from abroad. Please and please is ध्यान दीजिए, net factor income from means जो भी net factor abroad से आएगी वो हमारी GDP में कैलकुलेट होगी, ना कि
जो बाहर जा रही वो नहीं होगी, वो सब्ट्रैक्ट होगी। मीन्स ये ऐसे भी इस नेट फैक्टर इनकम को अगर हम सेपरेट करें, we can write this net factor income as like this. Income earned from abroad by our domestic players, subtract income earned by foreigners in our country. ठीक? go. अब इस इक्वेशन को मैंने इतना खींच के नहीं लिखा, मैंने इसको सिंपल तरीके से लिखा। नेट फैक्टर इनकम मीन्स जितना हमने वहां से इनकम कमाया उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है जितना उन्होंने हमारे कंट्री से कमाया। समझ आया? दिस इज हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम जीडीपी। जो सैलरी होगी ना फॉरेन डायरेक्टली जीडीपी में काउंट होती है। फॉरेन where does the salary go? Finally to your own country. Why should we calculate in our GDP? That is GDP. That is where we make a difference between GNP and GDP. Ultimately, we do not depend upon in the calculations of income. It becomes very hectic task. अगर आप ही की example ले, that's why we restrict ourselves to the production method, production or expenditure method, and that too जिसपे हम ज़्यादा हमारी कंट्री में फोकस है और उसी पे ज़्यादा फोकस है, that is production method, क्योंकि that is more reliable. ठीक? ये चीज समझ आया? अगर कोई और कंफ्यूजन भी होगा, प्लीज टू टेल। इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, मगर मुझे लगता है कि आपको नहीं होना चाहिए। व्हाई? बिकॉज ये चीज मैंने आपको बड़ी ल्यूसिड तरीके से समझाई। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो आप यहाँ ही बता दीजिए बिफोर आई मूव टू एनी फर्दर टॉपिक। मतलब इस इक्वेशन के हिसाब से जीडीपी में ये होना चाहिए ना, सब्ट्रैक्ट हो, देखो ये दिस इज क्वेश्चन आई एम, ये मुझे पता थी ये हो सकता है, मगर इसलिए मैंने आपको इस इक्वेशन में ये वाली टर्म है ना सेपरेट करके दी। सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, मगर हम अर्न भी कर रहे हैं ना, तो अर्न जितना कर रहे हो तो हमारे यहाँ आएगा, उसी में तो वो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना जो हमारे से बाहर जा रहा है, तो सब्ट्रैक्ट तो हो रहा है। इसलिए तो नेट मैंने लिखा है कहीं फैक्टर इनकम, मैंने लिखा है नेट फैक्टर इनकम। नेट मीन्स जो मैं कमा रहा हूँ उसमें से वो मुझे सब्ट्रैक्ट करना है जो वो लोग हमसे कमा के जाते हैं। दैट्स वेयर सब्ट्रैक्शन इज। ठीक? दैट्स व्हाई इट्स नेट। अगर अब नेट पॉसिबली जब प्रिलिमिनरी में ऐसा सवाल आता है तो आपको टर्म फिर डिफरेंट टर्म्स वहाँ दी गई होगी, और अगर आपने नेट को वहाँ ध्यान में नहीं लिया तो आपका मार्क्स 2.66 मार्क्स आपके गए। तो इस पर ध्यान देना है। तो जो भी मैं यहाँ आपको यूज कर रहा हूँ टर्म, तो इसमें अंदर से हकीकत छुपी हुई है। ठीक हो गया? ये जीएनपी आ गया। जीएनपी का कंसेप्ट पूरा समझ? इसमें अब और खींचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इतना ही है, और इसी पे आपको क्वेश्चन आएगा। और अगर आप इसके बाद भी अपने आप को खींचोगे तो आप खुद ब खुद ट्रबल क्रिएट करोगे अपने लिए। ठीक? जीएनपी हमने पढ़ा। अगर हम जीएनपी पे जीएनपी में अगर हम डेप्रिसिएशन को कंसिडर करें, क्यों? आपको एनुअली वेयर एंड टेयर हर किसी चीज पे होता ही है। अगर हम वो डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट करें, क्या करें? तो डेप्रिसिएशन मैंने आपको पहले ही बताया वो क्या होता है। ये क्या बनेगा? नेट। ये बनेगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी। क्यों हमें पढ़ना है एनएनपी के बारे में? सर जीएनपी तो बस उतना ही ठीक है, बट आई टोल्ड यू फर्स्ट, जो पहले ही मैंने क्लास में बोला कि एनएनपी पढ़ने की इसलिए जरूरत है बिकॉज हमें अल्टीमेटली नेशनल इनकम पढ़ना है, और उसके लिए एनएनपी पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। नेट नेशनल प्रोडक्ट हो गया। ठीक? अब जब मैंने कैलकुलेशंस पे आपको बताया, अगर हम नेट
एनएनपी की बात, ये सब ये कैलकुलेशंस किस पे हो रही है? जीडीपी हम किस लेवल पे कर रहे हैं कैलकुलेट? मार्केट वैल्यू पे। एनएनपी भी अगर हम उसी हिसाब पे वापस जाएंगे, जब हम छोटी छोटी टर्म इसको ब्रेक डाउन करेंगे, तो एनएनपी किस पे कैलकुलेट हुआ होगा? मार्केट वैल्यू। मगर मार्केट वैल्यू में क्या क्या चीजें होती है? सब्सिडीज और इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों हो। इनडायरेक्ट टैक्सेस भी होते हैं और सब्सिडीज को माइनस किया जाता है। हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ, मीन्स इसमें दोनों चीजें इन्वॉल्व है, मार्केट वैल्यू में सब्सिडीज भी और क्या है? सब्सिडीज किसको देनी पड़ती है? गवर्नमेंट को। इनडायरेक्ट टैक्स कौन लेता है? बट व्हाट वी आर स्पीकिंग अबाउट, वी आर स्पीकिंग अबाउट नेशनल। नेशनल मीन्स जो फ्लो ऑफ प्रोडक्शन में एक नेशनल प्रेजेंट होगा, उसी की हमें जिक्र करनी है। अगर हम सब्सिडीज और इनडायरेक्ट टैक्सेस को ले तो हम बोलेंगे वो नेशनल नहीं है, बल्कि वो स्टेट एक्सचेकर को इन्फ्लुएंस करती है। किसको इन्फ्लुएंस करते हैं? तो अगर हमें नेशनल इनकम के लिए जाना है, एक फ्लो ऑफ प्रोडक्शन में जो लोग उनकी इनकम के लिए, अब हमें किस कॉस्ट पे आना होगा? मार्केट वैल्यू की फैक्टर कॉस्ट पे। नेशनल इनकम के लिए हमें किस वैल्यू पे आना चाहिए? फैक्टर कॉस्ट। क्यों? हम उस चीज से बिल्कुल भी इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि हम स्टेट एक्सचेकर को क्या फायदा पहुंचा रहे हैं। हमें फ्लो ऑफ प्रोडक्शन में जो इन्वॉल्व है, उस पे क्या इन्फ्लुएंस होता है, तो वही हमारे कैलकुलेशन में नेशनल इनकम के लिए लग सकता है। ठीक, तो हम जाएंगे मार्केट वैल्यू से कहां? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक, और जो ये नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट होता है ना, यही आपकी नेशनल इनकम होती है। क्या होती है? क्या होती है? तो आपके लिए सवाल आएगा फिर, या एसएसबी, पीएससी या जेकेपी यूपीएससी का सवाल, नेशनल इनकम अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रेफर्स टू, तो वहां दी गई होगी, या तो स्टेटमेंट दी होगी फैक्टर कॉस्ट पे, या इक्वेशन में आपको दिया होगा। क्या होगा? क्या दिया होगा? ठीक, अगर हमें आप इसी नेशनल इनकम पे आना है, नेशनल इनकम की इक्वेशन पे, तो हम देखेंगे ना वो क्या मसला है। और NNF एट फैक्टर कॉस्ट, ये तो सेम है ना? मैं आपको चीजें स्प्लिट करके दे रहा हूं, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। इक्वेशन में किसके बराबर है? NNP एट मार्केट वैल्यू माइनस होगा इनडायरेक्ट टैक्स, प्लस होगा सब्सिडीज। क्यों? उसका उल्टा होगा ना? माइनस होगा इनडायरेक्ट टैक्स, होगा कि नहीं? इक्वेशन समझ आई? हमने जब उसमें देखा था, हमने वहां इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस किया था, इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस किया था, सब्सिडीज को माइनस किया था, मगर यहाँ उल्टा हो गया। क्या हो गया? तो इस पे मेहरबानी करके वहां आप ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम इसको हम ये भी लिख सकते हैं ना, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, NNP एट MV मार्केट वैल्यू लिख सकते हैं, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। मैथमेटिकली इक्वेशन में कोई फर्क आया कोई? क्योंकि माइनस माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया, माइनस 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 हो गया प्लस। और फिर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, NNP एट MV माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस।
लिख सकते हैं कि नहीं? आपको किसी भी फॉर्म में इक्वेशन वहां दी होगी, किसी भी फॉर्म में आपको इक्वेशन दी होगी, तो आपको वही, तो मैंने अब आपको किसी भी फॉर्म वाली इक्वेशन को यहाँ आपको ब्रेक डाउन किया, ठीक है? National income is nothing but a net national product at factor income, and we have to, अगर हमें इक्वेशन के तौर पर देखना है तो we have to come to that equation. We can write that equation in various forms. I have shown you various forms of that equation. Ultimately it means the same thing. हमें मार्केट वैल्यू से क्या करना है, क्योंकि सब्सिडीज ऐड हो जाएंगी और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस? इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें गवर्नमेंट को देने होते हैं, मीन्स वो फैक्टर इनकम से कट जाएंगे, हो जाएंगे ना खत्म। और सब्सिडीज किसको, सब्सिडीज किन का फायदा होता है, हाँ, तो उसको करना है प्लस। तो जब हम हमने फिर उसी को इक्वेशन को एनालाइज करके फिर थोड़ा मैथमेटिकल रीअरेंजमेंट की, तो हम डिफरेंट इक्वेशंस पे पहुंचे। आई थिंक नेशनल इनकम इज आल्सो क्लियर टू यू। अगर कोई भी क्वेश्चन यू कैन पोस्ट मी, यू कैन राइट इन कमेंट्स। तो मैं आपको ये अपील कर रहा हूँ अभी कि जो ऑनलाइन मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं, प्लीज़ स्प्रेड दीज फ्री कोर्सेज, इससे आपका बहुत फ़ायदा होगा। जो हम, क्योंकि खुद मैं एक मेंस क्वालिफायर हूँ इसका केएस का, तो उस जहाँ तक मेरी एक्सपीरियंस है, आई एम ट्राइंग टू cover that experience, using that experience, I am trying to use that experience to cover each and everything what I can do for you. तो इस चीज़ को तब भी फ़ायदा होगा जब आप बार बार अपने फ्रेंड्स में भी ये चीज़ इसको पुट फॉरवर्ड करेंगे, आगे जाके शेयर करेंगे और चैनल को ग्रो कराएंगे, सब्सक्राइब, ताकि हमारा रीच बढ़ जाए। दिस वुड बी माई पैशनेट अपील। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, आस्क योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब, तो इससे ज़्यादा अच्छा होगा। नाउ विल कम टू पर्सनल इनकम। ठीक, ये क्या हो गई आप, नेशनल इनकम। नाउ विल कम टू पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम, अगर हम एक इंसानों को कितनी इनकम इसमें हासिल है, जो भी फैक्टर ऑफ इनकम, उनको कितनी इनकम इसमें हासिल है, ठीक, वो तो होगी नेशनल इनकम जितनी होगी माइनस, इसमें कुछ टर्म्स माइनस हो जाएगी। क्यों हो जाएगी माइनस? बिकॉज जो भी कंपनीज के पास दो प्रॉफिट्स आते हैं, या तो होंगे वो प्रॉफिट्स जो वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या होंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। मीन्स अगर कंपनी को अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, तो वो तो एक इंसान को नहीं पहुंचेंगे, उसका फायदा इंसान को नहीं हुआ। मीन्स हमें नेशनल इनकम से वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स क्या करने हैं, माइनस। ठीक, साथ ही में क्या करना है, माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स मेड, minus net interest payments made by firm, made by households। ठीक है, ठीक, जब उनको नेट इंटरेस्ट पेमेंट माइनस होगा ना, ऑब्वियसली अगर वो लोन किसी को ओ कर रहे, वो इंटरेस्ट दे रहे, तो वो तो माइनस ही होगा ना, होगा कि नहीं? माइनस क्या होगा? अगर कंपनीज को जो कॉर्पोरेट टैक्स जो वो देते हैं, तो वो भी उनकी इनकम में ऐड नहीं होगा, वो तो माइनस ही होगा ना, वो कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक, प्लस ट्रांसफर पेमेंट टू हाउस होल्डर्स, प्लस एक ही चीज, ट्रांसफर पेमेंट्स, जो ट्रांसफर पेमेंट प्लस एक ही चीज हो रही है ना, ट्रांसफर पेमेंट
जो गवर्नमेंट की तरफ से एक हाउस होल्ड या एक फर्म को जाती है वही एक ट्रांसफर पेमेंट क्या हो जाएगा, प्लस फ्रॉम गवर्नमेंट टू हाउस होल्ड ऑफ फर्म्स। इस इक्वेशन में आपको डाउट है? यही है ना पर्सनल इनकम। अब ये तो होगी पर्सनल। अब हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, दैट इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। कि हाथ में आपकी क्या इनकम आ रही है। ये तो थ्योरेटिकली आपके पास ये इनकम आनी चाहिए। हाथ में आप जो डिस्पोज कर सकते हो, जो आपको हकीकत में आपके हाथ में इनकम आ जाती है, जो फिर आप खर्च कर सकते हो, वो क्या है? ठीक है, वो होगी पर्सनल इनकम माइनस होंगे पर्सनल टैक्स पेमेंट, होगा ना, माइनस क्या होगा, और नॉन टैक्स पेमेंट्स मीन्स सेस, फाइन्स, होगा। एंड दिस इज व्हाट यू हैव स्टडीड। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम तक आपको पढ़ना है, ठीक है। दिस इज एवरीथिंग अबाउट नेशनल इनकम अकाउंटिंग। बट अभी कितना टाइम हो गया, आप देखिए लेक्चर कितने टाइम का हो गया, 27 मिनट्स, फाइन। तो मगर हमने ये देखा कि हमने सारे अकाउंटिंग मेथड्स, अकाउंटिंग टूल्स हमने देखे, मगर हम एनालाइज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि एक तो परचेजिंग पावर पैरिटी में, क्योंकि वो अभी फिर लेंथ ही जाएगा, और लेक्चर मैं नहीं चाहता हूँ कि लेक्चर लेंथ ही जाए, ठीक है। तो उसमें हम और ये हम एनालाइज करेंगे, इज जीडीपी रियली अ गुड मैट्रिक, क्या इसमें कोई कमी पीशिया तो नहीं है, कैन वी कंपेयर, कैन वी यूज इट फॉर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो क्या ये खाली एक ऐसा मैट्रिक है। तो वो फिर हम इसको मेंस टच देंगे कल के लेक्चर में। आपका ज़्यादातर कौन सा टच होगा, मेंस वाला टच होगा, और उसी में हम परचेजिंग पावर पैरिटी को भी मेंस वाले पर्सपेक्टिव में या इंटरव्यू वाले पर्सपेक्टिव में भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आई थिंक दिस वुड बी ऑल फॉर लेक्चर फ्रॉम इकोनॉमी टुडे। थैंक यू सो मच।